Now let's start with our topic. Okay, I hope my screen is visible in all three division. If you have any query, you can directly tell me. Okay, so this is one of the topic uh, in your internal evaluation one and for MT also. Okay, so application of matrix in electric circuit. Okay, so basically with the help of matrix, we need to find the current present in a given electric circuit. Okay, so for this application, we need some prerequisites from electric circuit. In that, the first is side by side. You can write down all these things in your notebook. Okay, so can I wait for that? और आपने already notebooks रखी है साथ में. Please keep a notebook and calculator with you. Okay. And you can write down all these notes in your theory notebook. Okay. Okay. So for this application of electric circuit, okay, first we need the Kirchhoff voltage law. Okay. So the first definition or first statement that we need is Kirchhoff voltage law. Okay. What is Kirchhoff voltage law? Can anyone tell me? You can on your mic and you can directly tell me what is the Kirchhoff voltage law. Yes. Anyone from 3 division? What is Kirchhoff voltage law? Sir, voltage of low voltage in a loop is zero. Sum of all components in the loop is zero. Sir, the current flows from the node to the current flows from out of the node. Okay, that is Sir, across the circuit voltage would be zero. okay. It is equal to electromotive force. Okay, that is nothing but battery. Okay, so the statement is like this: the algebraic sum of voltage drop across each node is equal to the resultant electromotive force. Okay, this is your Kirchhoff voltage law. Okay, so for that basically we need, okay, what is the voltage drop across each node? So in that, what is voltage drop across current? Yes, what is voltage drop across current? Sorry, what is voltage drop across resistance? What is voltage drop across resistance? Yes. The algebraic sum Minus of IR. voltage is equal to the applied EMF. It is actually I into R, where I is the current. Okay, where I is the current and R is a resistance. So the voltage drop across resistance is actually I into R, where I is a current. Okay. In maybe further, maybe next course, okay. एक और बार आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का एप्लीकेशन आने वाला है और इन दैट केस बेसिकली वी विल लर्न LR circuit, RC circuit and so on. Okay. So in that particular topic, we need the voltage drop across inductance also, across capacitance also. So that part is there. So ये already आपका अभी cover हो रहा है, but इसका थोड़ा बहुत extension आपको next या multivariate calculus M2 में भी आने वाला है. In the case of differential equation, so differential equation में भी आप electric circuit का यूज करने वाले हो या इलेक्ट्रिक सर्किट के वहां पे एप्लीकेशन से. सो विल कवर दैट पार्ट इन that course also. तो अभी बस हमें इतनी रिक्वायरमेंट है. We just focus on resistance and we need what is the voltage drop across resistance. So this is the prerequisite as far as Kirchhoff voltage law is concerned. Now with
example, I will tell you how we can apply this result. Okay, with the help of example, I will let you know. Okay, पहले बस रिवाइज कर देता हूँ. जो नेक्स्ट लॉ हमें चाहिए वो है किरचॉफ करंट लॉ, जो ऑलरेडी इससे पहले किसी ने तो आंसर किया था. सो दिस इज नेक्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ. Okay. So uh, in case of Kirchhoff current law, basically the total current uh, flow, the total current in is equal to total current out. Okay, so that is your Kirchhoff current law. So let me just check what is the actual statement. The current flow into a node is equal to the current flow out of the node. Okay, so our total current in is equal to total current out. That is nothing but your Kirchhoff current law at that particular node. Okay, so let's write down this now. The current flow into a node is equal to the current flow out of the node, or it simply means the total current in is equal to total current out. Okay, so why we need these two statements for electric circuit or under this electric circuit? As I already tell you, this is the application under matrix. So somehow we need to create a matrix, or somehow we need to create an equation. Okay, because from equations also we can easily reach to the matrix. So with the help of these two laws, with the help of Kirchhoff voltage law and with the help of Kirchhoff current law, okay, here from a given electric circuit you will get some equations. Okay, in terms of current, and that is basically your linear system, and we just need to solve that linear system with the help of matrix. Okay, that is nothing but the application. That is the use of matrix in electric circuit. Okay, so let us take one example on this. Okay, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये लॉज सारे कैसे अप्लाई करने. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. तो आपको एज पर एज थियरी जो इलेक्ट्रिक सर्किट रिगार्डिंग जो आपको नॉलेज चाहिए या जो प्री रिक्विसाइट चाहिए वो इतना ही है. यू मस्ट नो व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड यू मस्ट नो व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ. अभी कैसे अप्लाई करना है वो हम एग्जांपल के थ्रू भी देखने वाले, बट वी जस्ट नीड दिस पार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. मैंने ऑलरेडी नीचे लिखा है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस. Okay. Just add all the students. अगर कोई वेटिंग में है तो आप मुझे बोलो. हाँ, क्योंकि ये एक टाइम पे सारे एडमिट हो रहे तो कहीं पे क्रैश हो सकता है. ओके, और आप ये चीजें लिखते जाओ क्योंकि ये फाइल में सेव कर रहा हूं, बट ये कभी कभी क्रैश होती है. ठीक है, सो नाउ ऑन दिस पार्ट, ओके, विल टेक वन एग्जांपल. ऐसा ही क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस आपको कुछ एमसीक्यूज भी आने वाले RE1 में. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट. Please write down all these things in your theory notebook. Find the currents in the various branches of the following network. So here we have given one electric circuit. Okay, and in that electric circuit there are 5 nodes: first, second, third, fourth and fifth. Okay, and we have given the directions of currents, and somewhere we have given the values of current also. Okay, so this 20 is actually one of the value of current. I1, I2, I3, I4, I5. These are the unknowns present in the given circuit. This 10 is also one of the value of current. This 10 is also one of the value of current. And 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the nodes. These are the nodes of your given electric circuit represented by a green color. Okay, here. तो क्वेश्चन क्या है कि
ये जो सर्किट है इस सर्किट में कुछ करंट प्रेजेंट है जिनके वैल्यूज जो अननोन है, लाइक I1 I2 I3 I4 I5. ओके, आपको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स और हाँ, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ दोज करंट्स. ओके, तो पहले आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट्स कैलकुलेट करने से पहले आप बस इतने ऑब्जर्व करो कि वहां पे कितने अननोन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसलिए मैंने पर्पसली उन अननोन्स को रेड कलर से हाईलाइट किया. तो इस क्वेश्चन में कितने अननोन्स प्रेजेंट है? सो टोटल 5 अननोन्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आप मुझे बोलो कि अगर वहां पे 5 अननोन्स है तो 5 अननोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कितने इक्वेशन आने चाहिए? 5. 5 इक्वेशंस. ओके, Five. ये हमने ऑलरेडी इससे पहले भी देखा है कि किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए, है ना, या किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास 2 अननोन्स है सो यू मस्ट हैव 2 इक्वेशंस. अगर आपके पास 3 अननोन्स है यू मस्ट हैव 3 इक्वेशंस. सो इन अ सिमिलर वे here we have 5 unknowns, then to solve these 5 unknowns we need to create 5 equation. तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि आपको कैसे भी करके 5 इक्वेशंस को क्रिएट करना होगा या जनरेट करना होगा, तब जाके आपकी ये सिस्टम सॉल्व होगी. एंड टू जनरेट those 5 equations we need to apply this above results. Okay, we need to apply this above result. ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना ही बैटरी है, तो बेसिकली यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं आने वाला. किरचॉफ वोल्टेज लॉ वहीं पे आएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है या बैटरी की वैल्यू प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे वैसे भी आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज नहीं होगा. तो बेसिकली वी नीड टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ फॉर ईच नोड, है ना. ये नोड के लिए अप्लाई होता है, तो हर एक नोड के लिए आपको अप्लाई करके वो सारे इक्वेशंस क्रिएट करने. तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कितने नोड प्रेजेंट है? देयर आर 5 नोड. आपको 5 इक्वेशन की ही जरूरत है. हर एक नोड के लिए आप क्या करो, किरचॉफ करंट लॉ आप अप्लाई करो एंड यू विल गेट दोस 5 इक्वेशंस. वहां से सिस्टम जनरेट होगी, सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ. अगर जहां कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आता है आप माइक ऑन करके मुझे बस बोलो. Okay, so in solution, so since resistance is not present in our circuit, so we need to apply only Kirchhoff current law. So by Kirchhoff current law, okay, and now apply this law for each node. Okay, so let me apply that law for node 1. So at node 1, ठीक है, फर्स्ट नोड के लिए पहले अप्लाई करते हैं. हाँ, तो क्या होगा फर्स्ट नोड के लिए? तो ये आपका पहला नोड है, यहाँ पे आप देखो. ठीक है, हाँ, सो एट फर्स्ट नोड द टोटल करंट इन इज इक्वल टू टोटल करंट आउट, है ना. सो व्हाट इज टोटल करंट इन? इन होने वाली करंट की वैल्यू क्या है? ओनली 20. 20 इज द ओनली करंट, है ना. 20 इज द ओनली वैल्यू. सो इन वैल्यू क्या है? ओनली 20. व्हाट इज आउट वैल्यू? कितने करंट आउट हो रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट नोड? I1 एंड I2. करेक्ट है, I1 एंड I2. तो क्या होगा ये? I1 प्लस I2. इन इज इक्वल टू आउट. सो इन की वैल्यू एक ही करंट था विच इज 20 एंड आउट इज I1 प्लस I2. ओके, क्लियर अबाउट फर्स्ट नोड? यस, बाद में इसको रीअरेंज करेंगे हम. ओके, Yes. हाँ, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट नोड. सो एट नोड 2, आपने डायग्राम सबने ड्रॉ की है ना, क्योंकि अभी नीचे स्क्रॉल करते समय थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा अच्छे से. सो नाउ फॉर सेकंड नोड, ओके, इन वैल्यू क्या है? ओनली I4, है ना. आप देखो एक ही करंट आ रहा है. सो इन वैल्यू इज ओनली I4. सो लेट मी जस्ट कंसिडर I4 एंड इन इज I4. आउट कितने है? 20 प्लस I3. 20 प्लस I3. Done. At the end for 1, 2, 4 and 5 नोड, ओके, टोटल करंट्स आर 3, है ना. थ्री वैल्यूज पे ही वो इक्वेशंस आएंगे. डन. सो नाउ लेट मी राइट इक्वेशन फॉर नोड 3. सो थर्ड इज एट नोड 3.
ओके, स्क्रॉल करके देखते हैं थर्ड नोड पे क्या हो रहा है. हाँ, सो थर्ड नोड मतलब ये मिडल का नोड है. इन करंट कौन से, I2 एंड I3. ओके, सो लेट मी जस्ट कंसिडर दोज. सो इन करंट इज I2 प्लस I3. आउट करंट कौन सा है, 10 प्लस 10 है ना, 10 प्लस 10. सो दिस आर द टू वैल्यूज फॉर आउट करंट. सो 10 प्लस 10 बाद में सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट नोड के लिए जाते हैं. सो एट नोड 4, एट नोड 4 फिर से चेक करते हैं डायग्राम से. सो नोड 4 के लिए इन वैल्यू एक ही है, 10 है ना, ये इन है. सो 10 इज द इन वैल्यू. सो लेट मी जस्ट कॉपी इट. Sir, I1 is also the in value, right? अरे सॉरी, 10 और I1, करेक्ट करेक्ट. लेट मी जस्ट करेक्ट इट, 10 एंड I1. And so for node 4, 10 and I1 is the in value, and out value is only one, which is I5. Okay, I5. Now come to next node. Last is at node 5. हाँ, so let's check for node 5. In value कितनी है? Again there are two values at node 5, 10 and I5. So 10 plus I5, 10 plus I5, and out value only one, which is I4. Please correct me if I am wrong. I4. I hope all equations are clear. Okay, done. So ये सारे इक्वेशन आपके पास आ गए. ठीक है, तो ये जितने भी इक्वेशंस यहाँ पे आ रहे हैं ना, ओके, दोज आर फ्रॉम दोज वी कैन क्रिएट अ सिस्टम. ओके, तो अभी बस मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर अरेंज करता हूँ. ओके, सिस्टम में क्योंकि आपको इसको प्रेजेंट करना है. सिस्टम के लिए जो इक्वेशंस आप जनरली कंसिडर करते हो, वहां पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में सारे वेरिएबल्स आते हैं, है ना. आप जनरली इक्वेशन कैसे कंसिडर करते हो, लाइक 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 10. तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो आप हमेशा इक्वल टू के आगे लिखते हो, है ना. कांस्टेंट पार्ट आप हमेशा इक्वल टू के आगे लिखते हो, और लेफ्ट साइड में सारे क्या आते हैं, आपके वेरिएबल्स आते हैं. तो ये जो पैटर्न होता है, ये जनरली इक्वेशन लिखने का पैटर्न होता है. तो इन अ सिमिलर वे we will consider all these given equations, okay, one by one. So let me just write down those equations. So पहला क्या है, I1 I2 is equal to 20. ठीक है, so therefore let me just rearrange the system. So your first equation is I1 plus I2 is equal to 20. सेकंड क्या है, सेकंड इज कांस्टेंट को हमें राइट साइड में रखना है. सो I4 और माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 20. या तो आप साइन कैसे भी चेंज कर सकते हो, इट्स योर कॉल. सो माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 20. माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 20. करेक्ट मी if I am wrong. देन थर्ड पे आते, I2 I3 इक्वल टू 20. I2 I3 इक्वल टू 20. फोर्थ पे आते, हम क्या करेंगे, I1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. सो माइनस I1 प्लस I5 इज इक्वल टू 10. ठीक है, एंड लास्ट में क्या आएगा, माइनस I5 और I4 माइनस I5 इक्वल टू 10. चेक करो एक बार, अगर कोई भी मिस्टेक है तो मुझे बोलो. Let me just admit students. ठीक है, सर इसका 5x5 मैट्रिक्स बनेगा ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट वो सारे आपको दिखाई दे रहे, 1 1 1 और -1 के मैट्रिक्स है, तो इट्स इजी.
सो यहाँ पे साइन आप प्रॉपर देखो, क्योंकि साइन मिस्टेक भी हो जाती तो ये करेक्ट आपको नहीं देगा. सो आई होप दिस इक्वेशंस आर करेक्ट एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, क्योंकि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, डन. सो नाउ हियर you will have this 5 equations, और ये हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 5 अननोन से you must generate 5 equations to solve that system. Okay, अभी यहाँ पे एक पॉइंट आप समझो, यहाँ पे कभी आपको नो सोल्यूशन का पार्ट नहीं आने वाला. Why? नो सोल्यूशन कभी नहीं आ सकता. द रीजन इज क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो अगर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो नो सोल्यूशन का आपको दे ही नहीं सकते. इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ करंट ना. तो अगर वो बोल रहे हैं कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब आपका आंसर एक तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा. नो सोल्यूशन इस केस में आता ही नहीं. नो सोल्यूशन आता है तो क्वेश्चन क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. सो remember that point. Okay, here you will always get either unique solution or either infinite solution. यही चॉइस होगी. नो सोल्यूशन आता है इसमें समवेयर आपने मिस्टेक की होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता ही नहीं वैसे जनरेट करना. Okay, so now this is our system. So let's quickly create a matrix from this system, but there are 5 variables. Okay, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल, इसलिए मैट्रिक्स आपको केयरफुली क्रिएट करना है. तो मैं यहाँ पे सिस्टम लिखता हूँ. Okay, so let me just take values one by one. हाँ, सो पहला कॉलम जो होगा वो I1 को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ I1? फर्स्ट में 1 है, सेकंड में है ही नहीं, थर्ड में है ही नहीं, प्लीज करेक्ट मी. फोर्थ में -1 है, नेक्स्ट में है ही नहीं. तो क्या कुछ तो एक मिस हो गया क्या? हाँ, 1 देन 0 देन 0, ओके, देन -1 देन 0. ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, अभी आते हैं सेकंड कॉलम पे. सेकंड कॉलम जो भी होगा वो I2 को रिप्रेजेंट करेगा. तो सेकंड कॉलम क्या होगा? इट इज 1, यहाँ पे I2 है ही नहीं, 0, यहाँ पे I2 है 1, यहाँ पे है ही नहीं, 0, यहाँ पे भी नहीं है, 0. थर्ड कॉलम I3 को रिप्रेजेंट करेगा. सो 0 -1 1 0 0. नेक्स्ट I4 को रिप्रेजेंट करेगा. सो 0 1 0 0 1. नेक्स्ट I5 को रिप्रेजेंट करेगा. 0 0 0 1 -1. देन कंप्लीट अ मैट्रिक्स. ठीक है, इनटू क्या आने वाला है? एक बार फिर से बताइए. ओके, लेट आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी. जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस. ओके, ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? कितने वेरिएबल्स है? 5 5. वेरिएबल्स है ना. तो हर एक इक्वेशन में 5 वेरिएबल्स रहेंगे. जैसे यहाँ पे पहला क्या I1 है, तो मैंने I1 लिखा. I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन में 1 है. I3 है क्या वहां पे? पहले इक्वेशन में नहीं है, तो इसलिए 0 आएगा. I4 है क्या? पहले इक्वेशन में नहीं है, 0 आएगा. I5 है क्या? पहले इक्वेशन में नहीं है, 0 आएगा. ओके, आते हैं सेकंड इक्वेशन पे. अभी सेकंड इक्वेशन में क्या किया है? हाँ, I1 है क्या? नहीं है, इसलिए 0 आएगा. I2 है क्या? नहीं है, 0 आएगा. I3 है -1, I4 है 1, बट I5 है ही नहीं, तो 0 आएगा. इज दिस क्लियर नाउ? कैसे लिखा है मैंने? यस सर. हाँ, इट सिंपली मीन्स आपका पहला कॉलम हमेशा I1 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड I2 को, थर्ड I3 को, I4 को, I5 को. मैंने अभी कॉलम के हिसाब से लिखा है. आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो, इक्वेशन वाइज है, इक्वेशन वाइज भी आप लिख सकते हो. जैसे थर्ड केस में क्या होगा? I1 नहीं है तो 0, I2 है तो 1, I3 है तो 1, I4 नहीं है 0, I5 नहीं है तो 0. डन. ठीक है, ओके. अभी आगे जाते तो हाँ, तो ये हो गया ए मैट्रिक्स. एक्स मैट्रिक्स क्या होता है? वेरिएबल का होता है. सो कितने वेरिएबल है? 5 है. सो राइट डाउन दोस. I1 I2 I3 I4 I5. ओके,
इक्वल टू राइट साइड का मैट्रिक्स क्या क्या वैल्यूज है पहले वो मैं लिख लेता हूँ. 20 है, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 10, नेक्स्ट इज 10. डन. लेट मी जस्ट be on. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? ये क्लियर हो गया सबको? अगर कुछ इश्यूज है तो आप मुझे डायरेक्टली बोलो. ओके, नाउ consider augmented matrix and let us reduce that augmented matrix into echelon form. ठीक है, तो अभी थोड़ा फास्ट करता हूँ इसके आगे का कैलकुलेशन. इसके आगे बस echelon फॉर्म में कन्वर्ट ही करना है. सो लेट मी जस्ट डू इट फास्ट. सो लेट मी टेक ए बी मैट्रिक्स. अभी मैं ना ज्यादा यही से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ. हाँ, तो ये हो गया मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. बस लास्ट में मुझे वो कॉलम ऐड करना है. सो लेट मी ऐड दैट कॉलम. सो या क्या क्या वैल्यूज है? 20 20 23 टाइम्स, 20 20 23 times, and 10 and 10. Okay, so now let us reduce this into echelon form. This is your first non-zero number. Below जितने भी एलिमेंट्स आ रहे सारे आपको क्या करने? जीरो करने. तो ऑपरेशन किस पे जाएगा? R4. हाँ, तो आपका ऑपरेशन जाएगा डायरेक्टली R4 पे. सो व्हाट इज ऑपरेशन ऑन R4? R4 minus R4 plus R1. प्लस R1. R1. ठीक है, सो करो वो कैलकुलेशन. आप अभी नोट आप फास्ट कर सकते हो, मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा. हाँ, अभी यहीं पे एडजस्ट करके कर रहा हूँ. हाँ, तो ये इस रो में चेंजेस होंगे. मैं एडिट करके कर रहा हूँ, आप करो. हाँ, तो क्या होगा? R4 पे ऑपरेशन जाएगा, R4 प्लस R1. तो सो दिस एंट्री इज 0. करेक्ट. नेक्स्ट क्या होगा? दिस एंट्री प्लस 1. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1. नेक्स्ट क्या होगा? 0 ही होगा. नेक्स्ट क्या होगा? 0 ही होगा. नेक्स्ट क्या होगा? 1 होगा. करेक्ट है. और लास्ट में क्या होगा? 10 प्लस 20 30. चेक करो मेरी 30. चेक करो ये. ओके, डन. सो ये हो गया फर्स्ट रो का पूरा कैलकुलेशन. नीचे सारे जीरो आ गए. नाउ कम टू सेकंड रो. बट इन केस ऑफ सेकंड रो वी नीड दिस एलिमेंट एज नॉन जीरो, है ना, सेकंड रो के लिए. बट अब ये जीरो आ रहा है. बट नॉन जीरो करना पॉसिबल है बाय इंटरचेंजिंग विद आइदर थर्ड या फोर्थ रो. सो क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं. सो लेट अस इंटरचेंज रो Third row. विद किसके साथ कर रहे हो आप? रो 3 के R3. साथ. ठीक है, सो लेट इंटरचेंज रो 2 विद रो 3 एंड लेट अस कॉपी दैट मैट्रिक्स अगेन. फर्स्ट रो पे क्या आएगा? देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट रो. सो 1 1 0 0 0 20. सेकंड रो थर्ड के साथ इंटरचेंज होगी. सो थर्ड रो आपकी क्या है? 0 1 1 0 0 20. ये रो नीचे आएगी. सो हाँ, नेक्स्ट इज 0 0 -1 1 0. ये भी होगा. फोर्थ रो पे कोई चीज नहीं है. सो 0 1 0 0 1 30. एंड लास्ट रो में भी कोई चेंज नहीं है. सो 0 0 0 1 -10. ठीक है, फास्ट करके जा रहा है. डन. सो ये हो गया आपका सेकंड रो का कैलकुलेशन. नाउ दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट. बिलो जितने भी आ रहे आपको सारे जीरो करने. ओके, सो ऑपरेशन जाएगा R3 पे.
R4 पे, सॉरी, सो ऑन R4 क्या ऑपरेशन होगा, R4 माइनस R2, करेक्ट. सो लेट अस परफॉर्म दिस क्विकली. आप करो वो. सर फिर रो इंटरचेंज भी करना पड़ेगा 4:5. ओके, देखते हैं क्या आता है. तो इसके साथ क्या ऑपरेशन होगा, दिस माइनस दिस. तो इसको पहले मैं इरेज करके रखता हूँ, ये चेंज हो गया होगा. हाँ, सो दिस माइनस दिस इज 0. नेक्स्ट इज दिस माइनस दिस इज -1. नेक्स्ट दिस माइनस दिस इज 0. नेक्स्ट इज 1 माइनस 0 एंड 30 माइनस 20 10 ना. यस. हो गया सेकंड रो का भी कैलकुलेशन. ये मतलब ये सारे 1 एंड -1 के, बट वो लिखने में ज्यादा टाइम जाता है. सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. ओके, नाउ कम टू थर्ड रो. थर्ड रो का पहला नॉन जीरो नंबर यह है. नीचे आपको सारे जीरो करने, ये सारे आपको जीरो करने. ऑपरेशन जाएगा डायरेक्टली R4 पे. क्या होगा ऑपरेशन, R4 माइनस R3. So R4 minus R3. Let's again perform this. ठीक है. हाँ, तो ऑपरेशन ये जा रहा है R4 पे. सो लेट मी जस्ट डू इट. इसको मैं इरेज करके रखता हूँ. चल करते कैलकुलेशन. हाँ, सो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस -1 1, और ये 10 माइनस 20 होगा -10, करेक्ट है. -10. अभी आते हैं लास्ट रो पे, सॉरी फोर्थ रो पे. तो ये है नॉन जीरो नंबर, नीचे जीरो करना है. तो ऑपरेशन जाएगा R5 पे. सो ऑन R5 योर ऑपरेशन इज R5 प्लस R4. लेट मी जस्ट R4. दैट इज फाइनल मैट्रिक्स. ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन, थोड़े लिखने में लेंदी रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चेंज बस लास्ट रो में होगा. और उसके बाद फिर सॉल्यूशन ही आएगा. हाँ, क्या क्या आने वाला है, मुझे थोड़ा लिखने में. हाँ, सो ये होगा 0. ठीक है. नेक्स्ट इज आल्सो 0, नेक्स्ट इज आल्सो 0, ये होगा 0, ये भी होगा 0. आई थिंक द होल, हाँ ये भी होगा 0. तो लास्ट रो इज टोटली 0, करेक्ट. ओके. Yes, sir. So this is your echelon form. Okay, ये लिखने में लेंदी है, बट आपको दिखाई दे रहा है कि सारे 1 एंड -1 की कैलकुलेशन है. सो दैट्स व्हाई इतना भी टफ नहीं होगा. आप आराम से करो. ओके, टाइम जाता है बट आराम से करो. नाउ लेट मी चेक द सॉल्यूशन. सो द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ रही है. There are 4 non-zero rows, which is equal to rank of A, and is less than number of variables, which are 5. है ना, 5 variables थे ना, I1, I2, I3, I4, I5. Therefore, given system has infinite solution. Okay, and let us calculate that solution. For that, we need to rewrite our system again from this मैट्रिक्स. सो योर फर्स्ट इक्वेशन इज, बोलो, फिर से सिस्टम लिखनी है ना. तो पहला इक्वेशन क्या होगा, पहला कॉलम I1 का है, सेकंड I2 का है, थर्ड I3, I4, I5. सो द फर्स्ट I1 plus I2 is equal to 20. I1 plus I2 is equal to directly 20. Next is I2 plus I3 is equal to 20. Next is minus I3 plus I4 equal to 20. Next is I5 na, minus I5, sorry I4 minus I4 plus I5 is equal to minus 10. अभी आप किसी भी एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, इट इज टोटली योर कॉल. ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है.
टोटल देर आर 4 इक्वेशन बट वेरिएबल्स आर 5, 4 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, एक का डिफरेंस आता है, मतलब एक को आपको कंपल्सरी असाइन करना है. सो लेट मी असाइन I5. Okay, so let me assign I5 as a T where this T belongs to R और ये वहां से आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं. सो I4 क्या आएगा? I4 इज ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, 10 यहाँ पे शिफ्ट होगा, सो 10 प्लस T ना. ठीक है, एंड नाउ कैलकुलेट. आप कैलकुलेट करके मुझे बस आंसर बोलो. I3 क्या है, I2 क्या है, I1 क्या है, वो टी में ही आएंगे. डू इट. सर 1 मिनट ऊपर लो ना. हाँ, यस, -10. ठीक है. सो I4 इज 10 plus T. What is I2? और what is I3? Sorry, what is I3? I3 होगा 20 माइनस. T minus I3 से पहले हमें क्या क्या कैलकुलेट होगा? वैसे आप जाओ ऊपर से T क्या minus कैलकुलेट 10. होगा? I4 अभी आपके पास है. I4 is 10 plus T. So I3 कैलकुलेट होगा. So I3 क्या होगा? So I3 is T minus 10. what is final value? T minus 10. 10 minus. T minus T minus 10. 10. okay. Next, I have those 30 answers. minus हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो. 30 minus T. ठीक है, ये थोड़ा 30 plus I2 की वैल्यू क्या है? 30 30. minus 30 T. minus T. एंड I1 T minus 10. ठीक है. आप अगर कुछ मिस्टेक है यू कैन करेक्ट इट एट योर लेवल. ओके, हाँ, डन. तो अभी मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. तो इसके आगे एक को असाइन किया तो सारे सॉल्व हो ही जाएंगे. प्लीज अगर कुछ मिस्टेक है प्लीज यू कैन करेक्ट इट. बट ये करेक्ट है, मतलब यहाँ तक जो भी हमने किया है वो करेक्ट है, तो आगे बस आपको वो देखना है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ओके, क्लियर हो गया? ये पहला क्वेश्चन लेंदी है बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एमटी में आने वाले हैं. ठीक है. yes. Okay. तो एक और एग्जांपल लेते हैं. And those two examples are sufficient in view of your MT also and in view of your I1 also. Okay. एक और एग्जांपल लेते हैं, that is sufficient. और वो थोड़ा फास्ट करते हैं. Let me just save this. Take one more example. ये क्या विजिबल? ये इज इट विजिबल? Yes. Okay. So we'll discuss one by one. अच्छे से देखेंगे. Please draw this diagram quickly in your notebook. अभी जैसे मैंने थ्योरी एग्जांपल लिया, इसमें से ही आपको इन बिटवीन के कुछ स्टेप्स ऐसे एमसीक्यू जैसे क्रिएट होके आएंगे. ठीक है, तो वो आपको बस 2 एग्जांपल प्रिपेयर करो, एमसीक्यू आ जाएगा. दैट इज माय पॉइंट. ओके, okay. So find currents in the circuit shown in the figure. Okay. Sir, So just a minute. okay, let us read it. So in this circuit there are 4 node 1 and 2 are the node of a circuit. This value is I1. This value is I1. यहाँ पे I1 प्रेजेंट है. I2 भी है, I1 है, this is I2, this is I3. No problem. I1, I2, I3. This value is 7 volt. This value is 8 volt. Okay. And resistance की value is given. R1 की value है 3, R2 की value है 2, R4 की value है 4. Please draw it. अब इसका फ्लो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. ठीक है, इसका ऐसे जा रहा है. हो गया सबका? कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Okay.
हाँ, तो आप पहले मुझे बोलो कितने अननोन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, कितने अननोन्स प्रेजेंट है? 3. 3 है Three. ना? तीन सर्कल भी करता हूँ तो आपको थोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि अभी विजिबिलिटी में थोड़ा इश्यू हो सकता है। I1 एक है, I2 और I3, these are the three variables. तो आपको कितने इक्वेशन क्रिएट करने, जनरेट करने? We need to generate 3 इक्वेशन by the help of Kirchhoff current law and by the help of Kirchhoff वोल्टेज लॉ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट लॉ से। करंट लॉ जो इजी है उससे हम पहले स्टार्ट करते हैं। करंट लॉ हमेशा नोड के लिए होता है, तो ऐसे नंबर्स में 1 और 2 नोड क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उसको बस आपको अप्लाई करना है। सो लेट अस फर्स्ट अप्लाई, सो फर्स्ट वी विल अप्लाई Kirchhoff current law at node. So by Kirchhoff current law at node, है ना? Kirchhoff current law नोड के लिए होता है। So at node 1, so at node 1 the total current in is equal to total current out. तो इनका करंट कौन सा है? I1 एक है, I1 ही है ना? I1 और कौन सा है? ये भी आ रहा है ना? I3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे देना चाहिए था, बट ठीक है, ओके। सो I1 एक आ रहा है और I3 का आ रहा है, लेकिन I3 भी सेम सर्किट के लिए आ रहा है, एंड आउट कौन सा हो रहा है? आउट हो रहा है। तो क्या नोड, क्या इक्वेशन आपके पास? दैट I1 इन वाला करंट, I1 एक इन हो रहा है, I3 इन हो रहा है। सो I1 प्लस I3 इज इन करंट एंड इज इक्वल टू आउट करंट जो है वो है I2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। नोड 2 के लिए भी लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है नोड 2 के लिए। ओके, सो नोड 2, सो एट नोड 2, नोड 2 के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मिल रहा है आपको, इन इक्वल टू आउट। तो नोड 2 के लिए इन हो रहा है I2, और कौन सा इन हो रहा है? I2 ही इन हो रहा है। सो I2 इन हो रहा है, एंड आउट कौन सा जा रहा है? ये I3 जा रहा है और I1 भी जा रहा है। सो I1 प्लस I3। क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? दोनों नोड से एक ही इक्वेशन मिल रहा है, करेक्ट? पॉइंट समझ में आ रहा है? Sir. हाँ, तो यहाँ पे दोनों नोड के लिए आपने इक्वेशन लिखा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे पहले हर एक नोड के लिए अलग अलग इक्वेशन मिल रहे थे, इसलिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। यहाँ पे नोड 1 के लिए आपने कैलकुलेट किया, नोड 2 के लिए कैलकुलेट किया, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? दोनों इक्वेशन सिमिलर है, इसलिए इनमें से एक इक्वेशन वैसे भी आपको क्या करना होगा? डिलीट करना होगा, क्योंकि वो रिपीटेशन में जाएगा। तो किरचॉफ करंट लॉ से अभी कितने इक्वेशन मिल रहे हैं? यू विल गेट ओनली वन इक्वेशन। सो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ करंट लॉ इन दिस केस यू विल गेट ओनली वन इक्वेशन, बट आपके पास 3 वेरिएबल है, तो आपको और 2 इक्वेशन क्रिएट करने होंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अभी वो कैसे अप्लाई करते वो देखते हैं हम। ठीक है, सो नाउ अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये हमेशा क्लोज लूप के लिए होता है, क्लोज लूप के लिए होता है। ठीक है, नोड के लिए नहीं होता। ये जितने लूप क्लोज लूप प्रेजेंट है वहां पे सर्किट में, उतने केस में आपको ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है देयर आर टू क्लोज लूप। ये पहला क्लोज लूप है ए, है ना? ये आपका पहला क्लोज लूप है और ये आपका सेकंड क्लोज लूप है। तो इस सर्किट में 2 क्लोज लूप प्रेजेंट है, तो 2 इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज ओनली फॉर अ क्लोज लूप। ठीक है, सो बाकी चीजें मैं इरेज करता हूं अभी के लिए। हाँ ठीक है, ये बस ये उसकी डायरेक्शन है। हाँ, तो वो रहने देता। हाँ ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है? जैसा अभी हम क्या करेंगे, इस लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है? द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नोड, है ना, इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे इस लूप में रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? 7 है ना? तो एक तो हो गया क्लियर, है ना? अभी लेफ्ट साइड में बस करना क्या है? कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नोड, सम ऑफ दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नोड इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और बैटरी। तो बैटरी की वैल्यू 7 है, तो वो मैंने कंसिडर किया। अभी बस मुझे करना क्या है? कितने नोड प्रेजेंट है? देयर आर 2 नोड, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। तो दोनों के अक्रॉस मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है वोल्टेज ड्रॉप। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? I इंटू आर होता है ना?
So what is voltage drop across R1? R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? 3 इंटू I1, है ना? I इंटू आर, तो कौन सा करंट पास हो रहा है यहाँ पे? I1 ही पास हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज 3 इंटू I1, करेक्ट? R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? R2 में से करंट कौन सा पास हो रहा है? I2 पास हो रहा है, तो प्लस 2 इंटू I2. दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज ड्रॉप. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या स्टेटमेंट था. The algebraic sum of voltage drop across each node. So there are two nodes or two resistance are there. One is R1, second is एक R1 था, second R2 था. तो R1 के अक्रॉस आपका ये क्या आ रहा है? वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रहा है? R1 में से कौन सा करंट पास हो रहा था? I1. So I1 3 इंटू I1, I इंटू R होता है ना, एंड प्लस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या था आपका? IR अगेन. सो करंट कौन सा पास हो रहा था? I2. सो 2 इंटू I2, okay, इक्वल टू क्या होता है हमेशा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज बैटरी. ठीक है, अभी क्या करते हैं? सेकंड लूप के लिए भी स्टेटमेंट लिखते हैं. सेकंड लूप के लिए भी क्या होगा? कलर चेंज करता हूं. सेकंड लूप के लिए भी क्या होगा? द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नोड इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यहाँ पे बैटरी की वैल्यू आपके पास है विच इज 8 वोल्ट, तो पहले वो कंसिडर कर लेता हूं, 8 वोल्ट. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नोड. बट उसमें या तो सेकंड लूप में नोड कौन कौन से है? R2 है और R3 है. तो R2 के अक्रॉस R2 और R3. ओके, सो R2 के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? I इंटू R. R2 में से कौन सा करंट पास हो रहा है? I2 पास हो रहा है, सो इट इज 2 इंटू I2. सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 क्या होगा? करंट कौन सा पास हो रहा है? I3 पास हो रहा है, सो प्लस 4 इंटू I3. ठीक है, इक्वल टू 8. तो आप देखो सेकंड लूप में दो रेजिस्टेंस थे, R2 और R3. R2 में से करंट पास हो रहा था, R2 की वैल्यू 2 थी और उसमें से करंट पास हो रहा था I2, सो 2 इंटू I2. R3 की वैल्यू 4 थी और R3 में से करंट पास हो रहा था I3, सो 4 इंटू I3 इक्वल टू 8. नाउ these are the two equation those we will get from closed loop 1 and closed loop 2. ठीक है, is this clear? Any doubt in these two equations? सर बीच में प्लस ही कैसे आ सकते हैं? माइनस भी आ सकते हैं ना? नहीं, ये इक्वल टू के साथ मैंने लिखा है. आपने जो लर्न किया है ना, अभी आपका वो कंफ्यूजन होगा साइन का, प्लस और माइनस के साइन. आपने जो लर्न किया है उसमें इक्वेशन में इक्वल टू 0 लर्न किया होगा. हम अभी क्या कर रहे हैं? इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले रहे हैं, तो ये साइन आप यहाँ पे माइनस माइनस तीनों का माइनस करके भी आंसर वही आएगा. ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे ही याद रखो. ओके, आपने जो लर्न किया ना वो टोटल इक्वेशन, उसमें प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं. ओके, अब ये प्लस और माइनस है ना एक पर्टिकुलर लूप के लिए होता है. जैसे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसमें से कोई करंट अपोजिट जा रहा है तो उसका माइनस साइन आता है. बट हमारे केस में डायरेक्शन सेम है, जैसे कि इस लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही है. ओके, और इस लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है. अभी आप ये मतलब एक केस में जैसे एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर आप प्लस एज्यूम करते हो, इसके लिए माइनस भी एज्यूम करते हो, वो सारे माइनस कैंसिल ही हो जाएंगे. सो क्या होता है कि किसी एक लूप में दो डायरेक्शन आते हैं. जैसे ये पहला क्लोज लूप था. ओके, एक करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो प्लस और माइनस जनरली वहां पे आएगा. ठीक है, अदरवाइज सब में प्लस आप ले सकते हो. यानी आपको प्लस और माइनस के एग्जांपल्स नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट में रिसर्च नहीं करना है, एज वी आर आवर इंटरेस्ट इज नॉट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इसलिए आपको एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के ही आएंगे. मतलब जो भी लूप होगा ना आपको सिलेबस में, उसमें एक तो आइदर एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, बट आपको साइन वो प्लस ही रखने. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे कि ये कोई तो क्लोज लूप है, ठीक है, और एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ये ऐसे जा रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसा होगा नहीं. जैसे I1 ऐसे, तो ये ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं होगा. किसी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आपका जाएगा, इसलिए वो प्लस और माइनस का यहाँ पे नहीं आने वाला. ठीक है, तो सब में आप प्लस साइन देके कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस टू इक्वेशन अंडर दिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो इसके अंडर में बस यही लिखूंगा. सो ए भी हो गया इसके अंडर. सो फॉर फर्स्ट क्लोज लूप, जिसको मैंने डायग्राम में ए से डिनोट किया है, चलो तो उसमें आंसर क्या आ रहा था?
3i1 plus 2i2. So that equation is 3i1 plus 2i2 is equal to 7. And next आपका second closed loop. So B और second close loop जिसको मैंने B से डिनोट किया है. So उसका एक था 2i2 plus 4i3. So 2i2 plus 4i3 equal to क्या था वो 8 था. ठीक है. So now here you will get 3 equation, है ना. 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी. तीनों इक्वेशन आपके पास आ गए. इनको बस रीअरेंज करके लिखो. सो देयरफॉर पहला इक्वेशन आपका क्या था, वेरिएबल सारे एक साइड में लो. सो i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0. तो पहला इक्वेशन बनेगा आपका i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन बनेगा यहां से ही. सो विच इज 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 7. थर्ड इक्वेशन बनेगा यही से विच इज 2 into i2 plus 4 into i3 is equal to 8. Now this is your system, non-homogeneous system. We need to solve this system. So consider matrix form and do the further calculation. तो पहले करते matrix form consider. So first equation होगा 1 minus 1 1. Second होगा i1 is 3, so 3. i2 is 2. i3 है ही नहीं तो 0. i1 है ही नहीं तो 0. i2 है 2. i3 है 4. डन. into i1 i2 i3 इक्वल टू राइट साइड के वैल्यू जो भी है विच इज 0 7 8. ओके. यहाँ पे भी आपको आंसर एक तो यूनिक और इनफाइनाइट दोनों में से ही मिलेगा. नो सॉल्यूशन इसमें नहीं आता. सो यू जस्ट कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू एक्चेलॉन फॉर्म क्विकली. डू इट फास्ट नाउ. आप करो डायरेक्टली स्टार्ट. सो ये होगा 1 minus 1 1 0 then 3 then 2 then 0 then 7 then 0 then 2 then 4 then 8. Now this is your first non-zero number. Okay. Below this जितने भी आते सारे आपको जीरो करने. So ऑपरेशन जो आएगा R2 पे. So on R2 it is R2 minus 3 times R1. एक ही होगा ऑपरेशन. So let's perform this. So it gives you, मैं अभी यही कॉपी करके करने वाला हूँ. हाँ. So it gives you, तो सेकंड रो में ही चेंज होगा तो उसको मैं डिलीट करके फिर से कंसिडर करूंगा. हाँ. तो क्या होगा, हाँ दिस माइनस 3 टाइम दिस 0, दिस माइनस 3 टाइम दिस तो ये प्लस होगा. क्या होगा 5. दिस माइनस 3 टाइम दिस इज माइनस 3. यस. एंड 7 माइनस 3 टाइम दिस विच इज 7. ठीक है. हाँ हो गया. दिस माइनस 3 टाइम दिस 5, दिस माइनस 3 टाइम माइनस 3 7. ओके. नाउ कम टू सेकंड रो. सेकंड रो का ये पहला नॉन जीरो नंबर. ठीक है. कुछ वर्णन करने की जरूरत नहीं है. 1 हो जाएगा. इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते थे. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट करूं. डायरेक्ट. ठीक है. सो बिलो दिस वी नीड टू मेक 0. तो ऑपरेशन जाएगा आपका R3 पे. अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट से करना होगा. इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, है ना, R3 को, एंड माइनस इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई. सो 2 into R2. एंड नाउ लेट्स परफॉर्म दिस. ये जिनको ऐसे नहीं करना है वो क्या कर सकते हैं, थर्ड रो को 2 से डिवाइड करके ऊपर शिफ्ट करके ले सकते हैं. अगर आपको कैलकुलेशन इजी करने है तो, या तो डिवाइड करके भी इजीली हो जाएगा. इसको बस डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करके भी वो हो जाएगा. इट्स योर कॉल. ओके. सो लेट्स डू दिस. तो ऑपरेशन जाएगा. सो 1, देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट टू रो. 1 minus 1 1 0. नेक्स्ट होगा 0 5 minus 3 7. ठीक है. नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर लास्ट रो. तो ये आएगा 0. ठीक है. ये तो 0 ही होगा क्योंकि वैसे तो हमने किया है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है विच इज 20 माइनस
माइनस माइनस ये प्लस होगा, 26. हाँ तो ये क्या आएगा 6 विच इज 26. ठीक है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है 8 को, ठीक है, विच इज 40, और माइनस क्या करना है, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट इज दैट वैल्यू, 26. 26. Done. ठीक है, हो गया आपका इकोलॉन फॉर्म. ओके, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, हियर यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन. तो वो लिख लेते हैं, रैंक ऑफ augmented matrix which is equal to 3, which is equal to rank of A, which is equal to number of variables. Therefore system has unique solution. Therefore system has unique solution. And to calculate that solution, फिर से आपको system लिखनी होगी. So your first equation is I1 minus I2 plus I3 equal to 0. Second है आपका I2 -3 I3 equal to say 7. नेक्स्ट आपका है 26 I3 equal to 26. तो लास्ट से वैल्यू आएगी I3 की 1. The answers are 1, 2, 1. I2 क्या है, I2 2 है, ओके, I1 1. I1 1 है क्या, Yes sir. so 1 Yes, to 1. sir. One. Yes sir. ओके, Yes, sir. ठीक, डन. ठीक है, अभी क्या होता है आपको एग्जाम में, मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, और लेट मी जस्ट शो यू. अभी ये ऐसा सर्किट था, यही सर्किट आपको ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, ये देखो नेक्स्ट केस में ऐसे ही आ सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है. इसमें ये पहला क्लोज लूप होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये पहला क्लोज लूप होगा, ये सेकंड क्लोज लूप होगा. यहां से दो इक्वेशन मिलेंगे, और नोड जो है बी नोड है, ई नोड है. ओके, यहां से आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगा. आप बी के लिए कैलकुलेट करो ऑलरेडी. ओके, तो यहां से एक, यहां से एक, और बी से एक, ऐसे 3 इक्वेशन मिलेंगे, और 3 वेरिएबल है दैट यू कैन कंप्लीट. ओके, तो ये एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, और 2 क्वेश्चन है, सो दैट इज more than sufficient for this electric circuit. Okay, so this is all about Sir, electric circuit. Yes, sir, इस पे MCQ based क्या होगा? Like type of question. okay.